اور اس کی آیت جو ہے وہ 20 آیت ہے. لکھا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبھی پر خداوند کی برکت ہو. میرے عزیزوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے جن کا ہونا ضروری ہے. اور پھر لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. کن کے ساتھ رہوں گا؟ کن کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں، اور وہ جو مددگار ہے خدا کا پاک روح ہے. وہ جو مددگار ہے خدا کا پاک روح ہے، جو ہمیں ہر کام میں، ہر ایک بات میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ انسانی سوچ ہے، انسانی فطرت ہے. خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. خدا تب چھوڑتا ہے جب آپ کی زندگی میں گناہ آتا ہے. خدا تب چھوڑتا ہے جب آپ کی زندگی میں نافرمانی آتی ہے. خدا تب چھوڑتا ہے جب آپ خدا کے حکموں کو چھوڑ کر دنیاوی حکموں کے فرما بردار ہوتے ہیں. خدا تب آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. خدا کا پاک روح جو ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور میرے عزیزوں، بائبل فرماتی ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. ساتھ رہنے کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو کسی حالات میں نہیں چھوڑتا، آپ کی غریبی میں نہیں چھوڑے گا، آپ کی بیماری میں نہیں چھوڑے گا، آپ کی تنگی میں نہیں چھوڑے گا. آپ کے کسی بھی برے حالات ہو جائے خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ محنت اٹھانے والے اور بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ زندگی کا آرام دوں گا. زندگی کا آرام جو ہے وہ یسوع کے پاس ہے. اور وہ کہتا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا. میرے عزیزوں، خدا آپ کو نہیں چھوڑتا. آپ خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بھولتا. آپ اس کی محبت کا اندازہ لگائیں. اس کی ایسی محبت، لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے زندگی مل جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. خدا آپ کو نہیں چھوڑتا. خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ جب ویرانوں میں چلتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے. جب آپ اندھیروں میں چلتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے. جب آپ تنگی میں ہوتے ہیں تو خدا آپ کو زور دیتا ہے. جب آپ بیماری میں ہوتے ہیں تو خدا آپ کو شفا دیتا ہے. جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ.
जब हम उसकी तरफ रज्जू लाएंगे तो वो हमारी तरफ रज्जू लाएगा। जब हम उसकी तरफ रज्जू नहीं लाते, जब हम उसकी तरफ ध्यान नहीं लाते, तो वो हमारी तरफ कैसे ध्यान देगा? जब हमारा ध्यान ही दुनिया की चीजों में है, दुनिया की बातों में है, दुनिया की तमाम तर ऐशो इशरत में है, तो वो आपको कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकते। सिर्फ यीशु है। लिखा कि देख मैं दुनिया के आखिर तक, यानी कि दुनिया बर्बाद तबाह खत्म हो जाएगी, फिर भी मैं तेरे साथ दुनिया के आखिर तक। यानी कि खुदा आपके साथ साथ चलता है, आपके कामों में, आपकी रहनुमाई में आपको खुदा अकल देता है। और देखिए उसका प्यार, देखिए कि उसका प्यार ये है कि उसने अपनी जान किन के लिए दी? हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बहाली के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी बख्शिश के लिए खुदावंद यीशु ने अपना कीमती लहू बहा दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की और हम खुद हलाकत के रास्तों को अपनाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद खुदा जो काबिल मुतलक है, जो फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, वो हमारे साथ है, वो हमारे गुनाहों की खातिर मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आपको नहीं छोड़ता। आप बहुत सफा सोचते हैं कि शायद खुदा मेरी आवाज को सुन नहीं रहा, शायद आप सोचते हैं कि खुदा मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। खुदा की नजरें, खुदा का काम आपकी दुआओं पर और आपकी शख्सी जिंदगी के ऊपर रहता है, क्योंकि उसका फरमान है कि मैं तुम्हारे, जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसका था, हमें किसका खौफ? हम बहुत सफा खौफ ज्यादा हो जाते हैं, और जब हम खौफ ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम अपनी बीमारियों में गिरफ्त होना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आप ईमान रखिए कि खुदा आपका, जिसने आपके लिए 40 कोड़े खाए, हाथों और पांव में ढील चुकवाए, जिसने कहा कि मैं तेरे लिए फिदिया दिया है, वो आपके साथ है। खुदा आपके साथ है। आप ईमान रखें, आप शक न करें। लिखा है ईमानदारों के दरमियान क्या होते हैं? ईमानदारों के दरमियान मोजज़ात होते हैं। आज हम अपना मोजज़ा रिसीव करने के लिए दर बदर जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि ईमानदारों के दरमियान मोजज़ात होते हैं। मोजज़ात तब होंगे जब आपका ईमान, आपका फोकस, आपका यकीन, आपका भरोसा खुदावंद यीशु पर होगा कि वो मेरे साथ है, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया! क्या खुदा आपको अकेला छोड़ सकता है? हर किसने, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। हम जब कमजोर हो जाते हैं, ज़हीफ हो जाते हैं, तो फिर भी खुदा हमें नहीं छोड़ता। खुदा हमें मां के बदन ही में से सुन लेता है, ताकि हम उसकी पैरवी करें, उसकी कोशिश करें। खुदा हमें सुन लेता है, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। कभी खुदा नहीं छोड़ता। जब भी छोड़ेंगे आप छोड़ेंगे, और
प्लीज, वो आपके सीनों में ऐसी बातें डालेगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि मैंने आज दुआ नहीं करनी, कलाम नहीं पढ़ना, चर्च नहीं जाना, इबादत में नहीं बैठना, मुझे बहुत सारे जरूरी काम है। खुदा तो कभी नहीं आपको अपनी हुजूरी से निकालेगा। बाप अपने बेटे को कब घर से बाहर निकालता है? कब निकालता है जरा बताएं? बाप तब अपने बेटे को घर से बाहर निकालेगा जब वो नाफरमान हो जाएगा, जब वो नाफरमान हो जाएगा और बाप की बात पर तवज्जो नहीं देगा। जब बाप उसे दिन रात समझाता है कि बेटे ख्याल कर कि तू जिंदगी में क्या कर रहा है, बेटा ख्याल कर कि तू किन दोस्तों के साथ बैठता है, बेटा ख्याल कर कि तू किन रास्तों पर चलता है। जब बेटा ख्याल नहीं करता तो फिर बाप मजबूर हो जाता है। किसी वजह से मेरे खानदान पर एक धब्बा है, मेरी फैमिली पर एक धब्बा है, और इसे चाहिए कि ये अपने बुरे कामों से बाज आए। खुदा भी ऐसा ही करता है। जब खुदा आपको बार बार कहता है कि तुम गुनाह ना करो, तुम फरेब ना करो, तुम चोरी ना करो, तुम ज़ना ना करो, तुम झूठी गवाही ना दो, और तुम तमाम बुरे कामों से बाज आओ, और हम बार बार वही करेंगे, तो क्या खुदा आपके साथ है? फिर नहीं है, वाज़ेह तौर पर नहीं है, क्योंकि खुदा झूठियां दी महफिल च नहीं बैठा, ना झूठियां नाल रखदा यारी, ना ते घमंडियां को जांदा ते ना ही झूठियां नाल यारी रखदा। मेरे शिशो, खुदा उनके साथ है जो ताबेदारी में है, फर्माबरदारी में है, ईमानदारी में है, परहेजगारी में है। खुदा उनके साथ है, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है, खुदा उनके साथ साथ चलता है। जैसे खुदा ने मिस्र की गुलामी में से इस्राएलियों को निकाला और खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, तब ही उनको खुदा उनसे जुदा होता था जब वो बुढ़ाते थे। 40 दिन का सफर 40 सालों पर चला गया, वो वहां पर ही घूमते रहे। ऐसा ही आज भी हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन इल्म आपके पास अभी भी बच्चों जैसा है, अभी आपकी बातें बच्चों जैसी हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ उस्ताद नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, खुदा का पाक रूह नहीं है जो आपको गाइड करे, जो आपको सिखाए, आपको समझाए, आपको लीड करे कि आप क्या करने और क्या आपको करना चाहिए। मेरे शिशो, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आप किस जगह पर खड़े हैं? अपने आप को खुदा के ताबिया करते और उसे कहिए कि खुदा, मैं तेरे बगैर अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ, अकेला महसूस करता हूँ, तू मेरे तरफ रचूला खुदा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया।